So good evening and welcome to this live session, guys. This is the first live session on this group, IAS Tayari with Jatin Verma. So this Facebook group, we have been increasing the activity on the Facebook group also insofar as uploading of these PIB updates and AIR FM updates is concerned, and then Indian Express important articles and so many other updates. Now, today's agenda of today's live session is to talk about 25 most important current affairs from Indian economy for the months of January to August 2018. And then apart from that, we are going to talk about 10 big announcements of budget 2018-19 and the action of government of India on them. So what basically this becomes important in the light of the fact that whenever something has been announced in the budget, that becomes of importance in the previous prelims, like prelims 2018. But whatever action has been taken on a particular item given in the budget or any other particular reform announced in the budget, whether that reform has taken place, if that reform takes place, then that matter becomes important for next prelims or mains, right? So for example, electoral bonds, etc., these things were announced, and then question will appear with regard to this thing, like if something is being done in that arena. Foreign portfolio investment related news is going on, current account deficit, GDP of India for the first quarter of the year 2018-19, then fiscal deficit. 86% of the fiscal deficit target for the borrowing target has already been, government has already utilized it. So there is a fair chance that government is going to exceed the fiscal deficit target, budgeted target. So those kind of things we are going to talk about. So first of all, 10 big announcements of budget I'm going to talk about. एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, एमएसपी की बात करी गई थी, एमएसपी ऑफ 1.5 times the cost of production will be provided. So here what becomes important, what is कि basically cost of production कौन सी body है जो determine करती है cost of production, which is the body, which ministry is it, which determines under that ministry a particular body comes up and then body decides the price. Commission of Agriculture Cost and Prices, right? And then Commission of Agriculture Cost and Price, within that this formula, what are the constituents of the formula for determining this cost of production? That is equally important, and this decision has been taken by the cabinet also. So what are the constituents of that formula? What are the constituents of arriving at cost of production? That also becomes important here. This is what I'm asking. तो कोई तो बता दो इसमें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की अराइव करने के लिए उस पे क्या फॉर्मूला रहता है, राइट? सो दिस इज देयर. नाउ ये आपको फाइंड आउट करना है. नाउ गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट में एक्सटेंडेड द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू फिशरीज एंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री आल्सो. एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी इसे अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने, ये किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो कि पहले फार्मर्स तक रखी जा रही थी, अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया, राइट? सो दिस इज देयर. फैमिली लेबर एंड इनपुट कॉस्ट, राइट? फाल्गुनी सिंह. नाउ 10,000 crore rupees set aside for fisheries and aquaculture development fund. Fisheries and aquaculture development fund comes under which ministry? Fisheries and aquaculture development fund. Then 10,000 crore rupees animal husbandry infrastructure fund. तो गवर्नमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, उसकी तरफ गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि उसकी तरफ उसको अचीव करने के लिए बेसिकली डाइवर्सिफाई करना जरूरी होगा. फिशरी सेक्टर में या फिर हम एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करके या एनिमल हस्बेंड्री को in the light of increasing instances of climate change, weather vagaries, monsoon vagaries, government has realized कि उसके बिना ये काम possible नहीं रहेगा, right? So this is there. Now farmer companies जो हैं, they will reap the benefits. उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा for 5 years. Farmer companies to reap benefits, tax, there will be no tax. That is, there is going to be a tax holiday for 5 years, right? तो ये एक important चीज है. The 5-year tax holiday for farmer producer organizations with a turnover of rupees 100 crore announced by Finance Minister Arun Jaitley in his budget speech. तो ये एक और important चीज है. रूरल इकोनॉमी की अगर हम बात करें,
एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट थीम था इस बार के बजट का बिकॉज ऑफ द रिकरेंट इंस्टेंसेस ऑफ ड्राउट। तो गवर्नमेंट ने पूरा इस पे जोर दिया गया है, काफी सारे पैसे भी एलोकेट करे गए थे इस बार बजट में। देन रूरल इकोनॉमी, 8 करोड़ पुअर women will get new LPG connections, right? 8 करोड़ women को new LPG connections दिए जाएंगे। तो this will help in, this is a part of which scheme? Which scheme are we talking about when we are talking about the distribution of new LPG connections? This will help in controlling the indoor house pollution also, right? So this is there. PDF will be provided, Harsh. PDF will be provided after the video is over, 2 to 3 hours after the video is over, right? तो इसमें एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में भी इनबिल्ट कर दिया गया है कि साथ साथ एलपीजी कनेक्शंस भी दिए जाएंगे। कौन सी स्कीम है? स्कीम तो बता दो। नहीं, उज्जवल योजना, राइट? सो दिस इज उज्जवल योजना, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि 2 करोड़ टॉयलेट्स नए बनाए जाएंगे नेक्स्ट फिस्कल ईयर में स्वच्छ भारत मिशन रूरल के तहत। और 2018-19 में मिनिस्ट्रीज विल बी एबल टू स्पेंड 14.34 lakh crore rupees for creation of livelihood in rural areas alone. So the impetus of the budget, the seriousness of the government towards rural areas and agrarian crisis is quite visible in this figure of around 14 lakh crore rupees. 14 लाख करोड़ रुपए रूरल एरियाज पे स्पेंड करे जाएंगे। दिस यू कैन यूज इन योर मेंस essay, any question on the rural economy. If any question comes on rural economy, you can highlight it in this way. This question is not, this information that 14 lakh crore rupees, 14 lakh crore rupees have been set aside for rural areas is of no use in prelims, right? Then education की बात करें, डिजिटल इंटेंसिटी ऑफ एजुकेशन, डिजिटल इंटेंसिटी इन एजुकेशन गवर्नमेंट ने बढ़ाने की बात करी है, राइट? तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? रुपीज 1 लाख करोड़ एलोकेटेड टू रिवाइटलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर, प्रमोटिंग लर्निंग बेस्ड आउटकम, लर्निंग बेस्ड आउटकम्स पे फोकस दिया जाएगा। तो लर्निंग बेस्ड आउटकम्स के लिए एक सर्वे आता है, एसर सर्वे। सर्वे की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, एसर सर्वे की फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा लर्निंग बेस्ड आउटकम्स के लिए गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप लिए हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है, राइट? देन 2022 में एवरी ब्लॉक, बाय 2022 एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन विल हैव एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस बिट ऑफ मोर डिटेल नीड्स टू बी एडेड टू दिस थिंग, राइट? एकलव्य स्कूल पे गवर्नमेंट इम्पेटस दे रही है। तो दिस इज इंडिया ईयर बुक टाइप इंफॉर्मेशन। इंडिया ईयर बुक में नेक्स्ट ईयर की आ जाएगा। rather than waiting for India year book, you should be researching it थोड़ा बहुत इधर उधर पीआईबी पे। एकलव्य स्कूल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन स्कूल्स के, ये आपको पढ़ना है। नाउ एम क्या है गवर्नमेंट का? टू मूव फ्रॉम ब्लैक बोर्ड टू डिजिटल बोर्ड स्कूल्स बाय 2022। 2022 तक डिजिटल बोर्ड स्कूल्स की तरफ हमें बढ़ना है। तो ये एक और बजट की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। अब इन पे जानने के साथ साथ हमें ये देखना है कि what action has actually been taken. It's been like 3 महीने 4 महीने अब इसमें हो जाएंगे, राइट? तो क्या क्या गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उस पे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीरियोडिक रिवीजन के वे से भी आप इसे ले सकते हो। Then we'll come to 25 most important topics from January to August 2018 in just 5 minutes from now. Then this aims to move from blackboard to digital board schools by 2022. और इसके अलावा पीएम प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए आईआईएससी के तहत, और गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई 1000 बीटेक स्टूडेंट्स ईच ईयर एंड प्रोवाइड देम टू डू पीएचडीज इन आईआईटी एंड आईआईएससी। आईआईटी और आईआईएससी के तहत ये दी जाएगी। और बाकी के जो कॉन्टूर्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो स्कीम के, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन इकोनॉमी से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करें। Now coming to this health sector, Ayushman Bharat program, everybody is aware about it. Ayushman Bharat program के broad contours क्या हैं? What is the family size in this? What is the family size? This thing 5, right? तो food subsidy to rise rupees 1.69 lakh crore rupees। और अगर health sector की बात करें, food sector की बात करें तो right, so this is there now. Health sector, Ayushman Bharat program, 1.5 lakh नए centers will be set up to provide health facilities closer to home
1200 करोड़ रुपए वर एलोकेटेड, नाउ दिस हैज बीन इंक्रीज टू 10,000 करोड़ रुपीस। आयुष्मान भारत के लिए 10,000 करोड़ रुपए अब गवर्नमेंट ने दिए हैं, जिसपे भी एनालिस्ट्स आर कमेंटिंग that the sum of 10,000 crore rupees will not be enough considering the challenges and considering the fact that people the bracket has increased, the family size has got increased and 5 lakh rupees per family, तो इसमें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अभी एलोकेट किए हैं। नाउ emoluments for the president set at rupees 5 lakh, ये चीज तो मिसलेनियस है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, इंडेक्स किया जाएगा इन्फ्लेशन के साथ में। एक तो लॉ बनाना जरूरी है, विच इटसेल्फ इज अ गुड थिंग कि एक लॉ बनाया जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिस्टर्स, मेंबर्स हो, एमएलएज हो या फिर एमपीज हो, ये बात ऑनरेबल एमपी मिस्टर वरुण गांधी हैज रेज्ड इट फ्रॉम टाइम टू टाइम that why MPs can increase their own salary when the country is facing drought, when the country is facing farm sector crisis. Okay, what right do Tamil Nadu MLAs have? What right do MLAs of Punjab have to increase their salaries? This concern has been highlighted again and again by the honorable MP, and here is the action happening here. Government ने इसे budget speech में incorporate किया, तो definitely we can expect some action. One of the most important announcements of the budget. और डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है रुपीस 80,000 करोड़ रुपीस। और अभी ये जो न्यूज आ रही है 10th ऑफ सितंबर 9th ऑफ सितंबर की, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, तो बायबैक ऑफ शेयर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट है बायबैक ऑफ शेयर्स, ये बात ठीक है। दिस इज वन थिंग दैट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कि 80,000 करोड़ रुपीस रिसोर्सेज, वर्थ ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज विल बी कलेक्टेड बाय वे ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। बट साइड बाय साइड जहां जहां पे पॉसिबल है, जहां जहां पे गुड कंपनीज हैं, उनमें गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करने के लिए शेयर्स को बाय बैक भी करने की दीपम के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट एंड मैनेजमेंट के थ्रू ये काम किया जा रहा है, राइट। तो यू कैन व्हाइल राइटिंग एनी आंसर ऑन डिसइन्वेस्टमेंट की दैट डिसइन्वेस्टमेंट इज लाइक सेलिंग द फैमिली गोल्ड, कि हम फैमिली का खजाना बेच दे रहे हैं, बर्तन बेच के मनरेगा वेजेस पे करी जा रही है। ये सब क्रिटिसिज्म टाइम टू टाइम होते रहता है। ऐसे क्रिटिसिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो recent step that has been taken by ministry to consolidate the stakeholding, the shareholding in these companies by buying back the shares, तो आप उस पे भी कुछ लिख सकते हो। Now बिग इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करने की बात करी जा रही है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राइट। शुभम, आई विल आंसर योर क्वेरी आफ्टर बिफोर द क्लोज ऑफ दिस सेशन, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस, राइट। तो ये पॉइंट्स को आप ऐसे यूज कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हो। आई विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीस क्वेश्चंस बिफोर कंप्लीटिंग, बिफोर वाइंडिंग अप टुडेस दिस लाइव सेशन, राइट। एंड देन दिस थिंग, बिग इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि इन कंपनीज के इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बेसिकली इनका लॉस बढ़ते चले जा रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू निप दिस फिनोमिना ऑफ these insurance companies or assurance companies making losses, government has thought it right कि इनको मर्ज कर दिया जाए, एक बड़ी जो है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करी जाए। तो यू कैन राइट अ मेंस आंसर। एक तो इन कंपनीज कब कब सेटअप करा गया था, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है ये पता होना चाहिए। इज एनी कंपनी आउट ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या फिर यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इज एनी ऑफ देम मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना कंपनी, ये आपको जानना जरूरी है, राइट। तो अपनी राइट, इसी राइट में, इसी रिस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन आता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, which is the ministry which identifies them, right? And then insurance companies के context में, since there is a talk of merger of these insurance companies in order to set up a big company, so ऐसे केस में this point becomes important. What is insurance penetration? What is insurance density? GDP to insurance ratio किसे कहा जाता है, राइट? तो हम प्राइमरीली ये जो पैरामीटर्स हैं ये हम लगाते हैं while talking about लाइफ इंश्योरेंस, राइट? तो यहाँ पे ये कंपनीज जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है। स्टिल एक ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि नेशनल ये जो हमारा रेशियो है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है इंडिया में, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। देन गवर्नमेंट ने पहले 80,000 करोड़ रुपीस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था, अब उसे रिवाइज करके 1 लाख रुपीस कर दिया गया।
राइट। तो बैंकिंग के लिए रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम, व्हाट आर रिकैप बॉन्ड्स, व्हाट आर रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, जो कौन सा मिशन है रिकैप बॉन्ड्स के लिए, कौन सा मिशन है ये बताओगे? Is the video streaming proper, guys? I just want to know from you guys, is the video streaming proper, since I'm receiving some of the comments. ओके फाइन। सो ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स का फिनोमेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेमवर्क फॉर बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने के लिए मार्च 31 तक ये कहा गया है, 31 2019 तक सेबी विल रिक्वायर द लार्ज कॉर्पोरेट्स आइडेंटिफाइड एज ऑन मार्च 31 टू रेज एटलीस्ट 25% ऑफ बोरोइंग्स थ्रू दिस रूट, राइट। तो बॉन्ड मार्केट से 25% मैंडेटरी नॉर्म लेके आया जाएगा, क्योंकि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, विजय माल्या जैसे किंगफिशर है या टाटा या रिलायंस, दे रिलाई ऑन बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, वो बैंक से कर्जा लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे केस में इन ऑर्डर टू डीपन द बॉन्ड मार्केट, इन ऑर्डर टू डेवलप द बॉन्ड मार्केट रादर, इसके लिए 25% नॉर्म लाया जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड किसी भी कंपनी को, टाटा या रिलायंस को अगर फंड्स बोरो करने हैं तो फिर उन्हें अगर 100 करोड़ चाहिए तो 25 करोड़ उन्हें बॉन्ड मार्केट से यानी कि जनता को अप्रोच करना होगा, जनता से कर्जा लेना होगा, या रादर देन बोरोइंग इट फ्रॉम बैंक्स। उससे क्या होगा, इंटरमीडियरी जो बैंक्स हैं वो निकल जाएंगे और जो कॉर्पोरेट्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं वो डायरेक्टली अपना पैसा कंपनीज में लगा सकते हैं। इससे बैंक्स के ऊपर जोर कम पड़ेगा, बैंक्स रिटेल कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। जो क्राउडिंग आउट फिनोमेना हम बात करते हैं गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, crowding out also happens between the private players, private corporates and the retail borrowers. Retail borrowers को साइड ट्रैक कर दिया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं बेसिक प्राइम बेस रेट की या बेसिक प्राइम दिस बीपीएलआर या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट की। ये इसीलिए लाए जाते हैं क्योंकि बैंक्स टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट्स की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, बैंक्स कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लेंड करने लगते हैं। इसी चीज को खत्म करने के लिए अब ये बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने की बात करी जा रही है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि कैसे इसे डीपेन करना चाहिए। सेबी विल रिक्वायर लार्ज कॉर्पोरेट्स आइडेंटिफाइड एज ऑन मार्च 31 2019 टू रेज एटलीस्ट 25% ऑफ borrowing of the fund requirement through this route from next financial year. अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर से इसे लागू किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। नाउ लार्ज कॉर्पोरेट्स की डेफिनेशन क्या है, फर्म्स नीडेड टू हैव एन आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ एटलीस्ट ₹1 बिलियन और उनकी क्रेडिट रेटिंग AA होनी चाहिए, AA क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, तभी वो लोगों से पब्लिक से पैसा बोरो कर सकते हैं, अदरवाइज पब्लिक से पैसा बोरो वो नहीं कर सकते, राइट। Hina, I will explain the public bond concept elsewhere. The purpose of this live session is just to tell you the topics. If I will go into the deeper detail, then this will create a problem, right? तो LTCG टैक्स एक और बड़ी बात, बजट ने अभी जो हम देख रहे हैं FPI के अराउंड, अगर आप लोग आज न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो या डीएनए देख चुके हो तो फिर ये जो न्यूज चल रही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंग ये जो चीज है इसका लेना देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जब से बढ़ाया गया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम इंडिया, राइट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब LIC या फिर ये जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, या जो बड़ी म्यूचुअल फंड्स हैं डोमेस्टिक, इंडिया के अपने म्यूचुअल फंड्स अब ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, जबकि फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि सिटी फाइनेंशियल या फिर बैंक ऑफ अमेरिका या फिर इनके जो LIC ऑफ USA है, वो भारतीय मार्केट में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा विड्रॉ कर रहा है। FIIs have been net sellers of the stocks in the Indian market. ऐसा क्यों है, क्योंकि फेड रिजर्व ने जो रेट वहां पे इंक्रीज कर दिए हैं, बिकॉज ऑफ दैट फेडरल रिजर्व के रेट्स इंक्रीज करने के चलते ऐसा हो रहा है, राइट। Then the grandfathering clause is the exemption granted. अब इसमें LTCG में grandfathering clause रखा गया है और LTCG में ये कहा गया कि अगर किसी का प्रॉफिट शेयर्स बेच के, स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज, नॉट ओनली शेयर्स बट स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज को अगर बेच के किसी ने एक साल में 1 लाख रुपए, 1 साल से कम में
within 1 year if I purchase shares of Tata Company Limited and I earn more than 1 lakh rupees in a span of less than one complete year, less than 365 days, then अगर जो मैंने जो पैसा कमाया है उसमें से 1 लाख रुपीस को छोड़ के बाकी पैसे पे 10% टैक्स मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जो एक साल से ऊपर का जो मैंने पैसा एक साल से ऊपर सिक्योरिटीज जो रखी हैं उन पे अगर कमाया है। 2018 ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट कर दिया गया है। अगर मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि एक साल से कम में पैसे अर्न करे हैं तो फिर 15% रेट ऑफ टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स मुझे देना होगा। अगर मैं 365 डेज के बाद शेयर परचेज करने के 365 डेज के बाद उसे बेचता हूं तो पहले उस पर कोई टैक्स नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बढ़ावा देती थी, राइट। इन्वेस्टर और बोरोवर के या शेयर होल्डर या शेयर मार्केट में अगर मैं एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फिर उसे गवर्नमेंट उसे इंसेंटिवाइज करती थी और कोई टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन अब इस टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया है, इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब इस टैक्स को रादर री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 10%, पहले 2004-5 में इसे खत्म कर दिया गया था, राइट। तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है, यानी कि पहले जो इन्वेस्टमेंट करी जा चुकी है उस पे ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 1 अप्रैल 2018 के बाद अगर कोई टैक्स लगाया जाता है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं और उसे 1 अप्रैल 31 मार्च 2019 के बाद भी बेचता हूं तो भी उस पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स मुझे देना पड़ेगा। और इसके अलावा कुसुम स्कीम है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, राइट। कुसुम स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी बजट 2018-19 में और सेंटर विल प्रोवाइड रुपीस 48,000 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस। एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है? एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट कम्स इनटू व्हिच लिस्ट? एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है, राइट। तो बावजूद उसके एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को देखते हुए टोटल कॉस्ट जो है इसकी इंसेंटिव इस स्कीम की, कुसुम स्कीम की क्या है? 1.4 लाख करोड़ रुपीस, 48,000 करोड़ रुपए, 48,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट विल स्पेंड, रेस्ट ऑफ द मनी विल हैव टू कम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। So it aims to incentivize farmers to run solar farm, water pumps and use barren land for generating solar power to have extra income। यानी कि जो बंजर जमीन है उससे एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या करना होगा? उसे सोलर फार्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुसुम स्कीम का मतलब यह है किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, राइट। तो इसमें सोलर पावर को इम्पेटस देने के लिए, फिलिप देने के लिए ये किया जा रहा है। नाउ कमिंग टू दिस, farmers produce to get 1.5 times the cost of production। ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। एंड देन टू डेवलप एग्रीकल्चरल मार्केट्स, एग्रीकल्चर मार्केट डेवलपमेंट फंड विद अ कॉर्पस ऑफ 2,000 करोड़ टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर मार्केट्स। और ई असेसमेंट, इसमें ई असेसमेंट में क्या किया जाएगा? कंपनीज और इंडिविजुअल्स अपनी टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट के अंडर खुद ही ये फाइल कर सकते हैं और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर टैक्स ऑफिशियल्स आपकी टैक्स रिटर्न या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनीज की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनका ऑडिट करने आते हैं या उनकी जांच पड़ताल करने आते हैं तो वहां पे करप्शन का स्कोप रहता है। ई असेसमेंट इसका मतलब ये है ट्रांसपेरेंसी पुश फॉर कंपनीज, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। Team based assessment with dynamic jurisdiction will be rolled out across the country। Team based assessment इसमें रहेगा, ना कि पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शन, चाहे वो IRS ऑफिसर्स हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हो, अकेले पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम बेस्ड रहेगा तो जैसे हम देखते हैं कि बोर्ड वे ऑफ फंक्शनिंग, जैसे यूपीएससी का बोर्ड है, राइट, या फिर कोई भी बोर्ड रहता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो करप्शन का स्कोप कम हो जाता है। ऐसे ही जब कोई इनकम टैक्स की टीम आएगी तो उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन नहीं, अब प्रॉपर टीम का आना जरूरी है। अगर प्रॉपर टीम होगी तो 10-15 लोग उसमें होंगे, एक आध को खरीदना नामुमकिन हो जाएगा और एक आध किसी इंडिविजुअल को हैरेस भी नहीं कर पाएगा इस वे में। नाउ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम फॉर एवरी 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी हमने डिस्कस कर लिया है। होम फॉर एवरी पुअर बाय 2022, तो ये हमने देखा कि 2 करोड़ नए घर जो बनाए जाने की बात करी जा रही है, 20 लाख, 18.78 मिलियन
18.78 मिलियन इसमें शॉर्टेज है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि 20 से 25 लाख घर जो है इसमें बनाए जाएंगे, राइट। सो दिस इज देयर। नाउ क्विकली बात करेंगे जो पिछले 8 महीनों के जनवरी 2018 से लेकर अगस्त 2018 के 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो है प्रोजेक्ट है इसमें सशक्त, देन सिंकिंग वैल्यू ऑफ रूपी। सिंकिंग वैल्यू ऑफ रूपी के चलते रीर और नीर, ये मैं डीएनए में कवर करूंगा आज या कल के, तो रीर और नीर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमी के ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो गाइस आई विल बी कमिंग अप विद द इकोनॉमी कोर्स इन फ्यू डेज फ्रॉम नाउ। इकोनॉमी कोर्स में लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ अभी, काफी सारी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसमें हम ये सभी इश्यूज को डील करेंगे बेसिकली, राइट। तो इकोनॉमी का प्लस कोर्स रहेगा, बजट और ये सब। पॉइंट है कि अगर अब अभी कोर्स हम लॉन्च करते हैं तो फिर मैं उसमें बजट वगैरह नहीं कवर कर पाऊंगा क्योंकि कोर्स पहले खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप ये देख लेना कि मतलब बजट उसमें कवर हो रहा है या नहीं। हमें इकोनॉमी का बजट प्लस में जो अनअकैडमी प्लस का कोर्स रहेगा, इकोनॉमी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे उसमें कवर करना है। अब अगर कोर्स अभी लॉन्च कर देते तो वो जनवरी में खत्म हो जाएगा, इसीलिए आई एम होल्डिंग बैक अभी थोड़े दिन कि कोर्स कुछ ऐसे टाइम पे लॉन्च किया जाए कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे उसमें कवर कर पाए along with the fundamentals and current affairs of economy. Now project सशक्त है, इसमें small and medium enterprise resolution, इसमें resolution approach for loan exposure। सशक्त करने का मतलब ये है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन बैड लोन्स हो रहे हैं, एनपीए प्रॉब्लम है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, उसको सुलझाने की बात। इसके बाद म्युनिसिपल बॉन्ड्स का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक के डेली न्यूज एनालिसिस जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, 1 अगस्त 2018 से 5 अगस्त 2018 के 3-4 दिन का ये डीएनए है। इसमें ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी के सभी कॉन्टूर्स कवर करे गए हैं, तो आप वो देख सकते हो वहां पे। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसका प्रोसेस क्या है, ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें क्या है कि क्रेडिटर और अब बोरोवर दोनों में से कोई भी, बोरोवर है या फिर क्रेडिटर है, बैंक या बोरोवर दोनों एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को रिजॉल्व किया जाए, राइट। If admitted, a committee of creditors shall be appointed by lenders. Committee of credit will structure the debt recast plan within 180 days. 6 महीने के अंदर अंदर इसे करना, जो डेट रिकवरी प्लान है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। पावर एसेट रिवाइवल थ्रू वेयर हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन, परिवर्तन स्कीम, पावर एसेट रिवाइवल, तो इसका जो नोडल एजेंसी लगाया गया है उसे लगाया गया है, वो लगाई गई है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ये परिवर्तन स्कीम को लागू करेगी। इसमें क्या किया जाएगा, प्रोजेक्ट्स विल बी हाउस्ड अंडर द एसेट मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कंपनी व्हिच विल बी जॉइंटली ओन्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और स्कीम क्या है, ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम, यानी कि जो पावर सेक्टर में बैड डेट्स देखने को मिल रहे हैं उन्हें रिवाइव करने के लिए बैंकों की ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है पावर सेक्टर कंपनीज और बैंक्स की, उनका समाधान पाने के लिए ये किया जा रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन क्या मिनी रत्ना है, महारत्ना है या नवरत्ना है, या फिर आप लोगों की तरह अनमोल रत्ना है, राइट। तो ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिन्हें पता है कि ये अनमोल रत्ना है या फिर नवरत्ना है। नाउ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ये एक और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। इसमें वाईएम देवस्थली कमेटी थी, वाईएम देवस्थली कमेटी से बोला जाता है। ये कमेटी सेटअप करी गई थी, इन्होंने ये बोला है कि पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री होना चाहिए जो कि एक इंफॉर्मेशन का बैंक होगा, इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें सभी क्रेडिटर्स की, राइट। तो इंफॉर्मेशन क्रेडिट रजिस्ट्री। और डेफिनेशन ऑफ शेल कंपनीज इन इंडिया, शेल कंपनीज आर नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। शेल कंपनीज की डेफिनेशन 2013 के एक्ट में है ही नहीं। शेल कॉर्पोरेशन की जनरल डेफिनेशन है हमारे पास में, लेकिन इसे डिफाइन करना जरूरी है अगर किसी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करना है, राइट। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज पढ़ोगे शेल कंपनीज, इसे नोट कर लो प्रीलिम्स के लिए। डेफिनेशन ऑफ शेल कंपनीज इज नॉट गिवन इन दी इन दिस थिंग, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इसके बाद आरबीआई डिसाइड्स टू यूज जीडीपी इंस्टेड ऑफ जीवीए। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जीडीपी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। आरबीआई ने अब ये कहा है कि आरबीआई जीडीपी का डेटा यूज कर रहा था, राइट। RBI will use GVA to measure economic activity in the country.
The change is to conform with the international practice for ease of comparison. तो इंटर कंट्री कंपैरिजन के लिए आरबीआई अब ग्रॉस वैल्यू एडेड को यूज करेगा. आरबीआई डिसाइड्स टू यूज जीबीए इंस्टेड ऑफ जीडीपी. पहले मिस्टेक हुई उसके लिए माफी. Globally, the performance of economies is gauged in terms of GDP. GBA gives a picture of the state of economic activity from the producer's side. GDP gives the picture from the consumer side or the demand side perspective. और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और रिफॉर्म जो किया गया है, अप्रूवल फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन. रिसेंटली कैबिनेट ने ये कहा है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को अप्रूवल फॉर दिस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है. इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इसका फायदा क्या होगा? दिस न्यू पॉलिसी फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन. कैन एनीवन टेल मी व्हाट स्टेप हैज बीन टेकन इन दिस approval of this new exploration and licensing policy? Bundled exploration. Earlier, what used to happen, if I have been given the contract only for gas exploration, but if I come across some oil, I cannot extract that. लेकिन अब क्या किया गया है? अगर मेरे को लाइसेंस, इंटीग्रेटेड लाइसेंस दिया जाएगा, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जाएगा. अगर मैंने गैस एक्सप्लोरेशन करने के लिए, सीएनजी या एलपीजी एक्सप्लोर करने के लिए भी लाइसेंस लिया है, या नेचुरल गैस एक्सप्लोर करने के लिए लाइसेंस लिया है, तो और साथ में अगर कोई ऑयल डिस्कवरी होती है तो फिर ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा और गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर दोनों इसे शेयर करेंगे. तो ये विन विन सिचुएशन है. HELP, राइट. इरफान हसन, दिस इज करेक्ट. HELP बोला जाता है इसे. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कमोडिटी स्पॉट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट. दोनों मार्केट्स को इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी, रमेश चंद कमेटी लगाई गई थी इस पे. तो कमेटी ने ये कहा है कमोडिटी स्पॉट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट को मर्ज कर दिया जाए. कौन सी कमेटी? रमेश चंद कमेटी. इससे पहले जो है देवस्थली कमेटी, ये 2-3 कमेटीज इकोनॉमिक एरिना की जो है, फाइनेंस एरिना की 8-10 कमेटीज हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. देन इंटीग्रेशन, ये आप याद रखोगे, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाई गई है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम has been approved for implementation during 2018-19 and 19-20. इसके ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे स्कीम के? टू इंटीग्रेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पोर्टल्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो वेबसाइट्स हैं स्टेट्स की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेबसाइट्स, उन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. यानी कि जैसे डिफरेंट स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ फूड है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जानना इसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्य सरकारों को जो हेल्प कर रही है वो उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे केस में अगर ये इंटीग्रेटेड रहेगा तो फिर जानना, और इसका जो ऑडिट है, और साइड बाय साइड नेशनल पोर्टेबिलिटी. सपोज अगर कोई माइग्रेंट बिहार से पंजाब में माइग्रेट करता है तो उसका जो राशन कार्ड है उसे नया बनवाना पड़ता है. कहाँ पे? पंजाब में, राइट. तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाती है, 6 महीने के लिए राशन नहीं मिलेगा. एक स्टेट में कोई गरीब है, दूसरी स्टेट में उसका अता पता, रेजिडेंशियल या डोमिसाइल डिटेल्स ना होने के चलते उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो ऐसे केस में ये नेशनल डेटाबेस काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा बेनिफिशियरीज के लिए. तो डी डुप्लीकेशन ऑफ राशन कार्ड. राशन कार्ड वही पुराना बिहार वाला कैंसिल हो जाएगा और पंजाब वाला नया बन जाएगा. माइग्रेंट लेबर के लिए, इंट्रा कंट्री माइग्रेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है. New scheme will bring more transparency and efficiency in distribution of food grains, as it will improve the mechanism to identify fake or duplicate ration cards. यानी कि अगर कोई बिहार में है, उसके पास वहां पे राशन कार्ड है, बिहार वाला आदमी जब यूपी यहाँ पंजाब में आ जाता है तो फिर बिहार वाला राशन कार्ड भी चलते रहता है और पंजाब वाला भी चलते रहता है. तो इससे फ्रॉड होता है और घोस्ट बेनिफिशियरीज और ये सब, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. आरबीआई ने एक और रिफॉर्म है, आरबीआई रिवाइजेस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स. हाउसिंग लोन लिमिट्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन दिया जाता है, आरबीआई ने ये कहा है मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में जो 28 लाख था, आप 28 लाख से कम या 28 लाख रुपए का अगर इफ यू यूज्ड टू परचेज अ हाउस वर्थ 28 लाख रुपीस, यू वर गिवन सम इंटरेस्ट रेट कंसेशन ऑफ 1 to 2%, राइट. तो अब उसे 35 लाख रुपीस का हाउस अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में खरीदते हो तो that house is eligible for concessional rate of interest. एंड इसके साथ साथ क्योंकि पॉपुलस कंट्री होने के नाते बढ़ती कीमतों के चलते ये करना जरूरी था. और and ₹25 lakh from 20 lakh earlier in other centers, provided the overall cost of the dwelling unit in the metropolitan center
and other centers does not exceed 45 lakh rupees and 30 lakh rupees. तो मैक्सिमम 45 लाख रुपीस और 35 लाख रुपीस के घर अब एलिजिबल होंगे। मिनिमम 35 लाख रुपीस तक आप कोई भी घर लेते हो तो वो एलिजिबल है, 45 मैक्सिमम कर दिया गया, राइट, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में 25, पहले 20 लाख था, 25 लाख कर दिया गया और मैक्सिमम 30 लाख रखा गया है। एग्जिस्टिंग लिमिट फैमिली इनकम की 2 लाख रुपए थी। अगर किसी फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अब 3 लाख रुपीस कर दी गई है, राइट, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लोअर इनकम। लोअर इनकम के लिए इसे 6 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो ये बढ़ती इन्फ्लेशन और बढ़ती कीमतों के चलते है। पहले लोअर इनकम ग्रुप, पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर किसी हाउस की इनकम, फैमिली की इनकम, हाउस होल्ड की इनकम 2 लाख रुपीस तक है तो ही वो एलिजिबल थे, लेकिन अब उसे 3 लाख कर दिया गया है। एंड मिडिल जो वीकर सेक्शन है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 3 लाख, लोअर इनकम ग्रुप 6 lakh rupees, right? 6 lakh rupees. If your income is up to 6 lakh rupees, then you are eligible to get the home purchase loan. You are eligible to borrow the loan at a concessional rate of interest. Then इसके साथ साथ from FY 2018-19, the foreign banks with 20 branches and above will have to ensure that minimum of 8% of adjusted net bank credit, minimum of 8% adjusted net bank credit or credit equivalent amount of the off balance sheet exposure which is higher is earmarked for lending to small and marginal farmers. तो ये सब चीजें आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। Then नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी बनाई गई है। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है, सुनील मेहता कमेटी के कहने पे अगर कोई आरबीआई, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर किसी और बैंक ने इकट्ठे मिल के लोन दिया है जॉइंट लेंडर फोरम के जरिए, और वो लोन के रेजोल्यूशन के टाइम पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रेजोल्यूशन के टाइम पे अगर पीएनबी एग्री नहीं होता, एसबीआई और एचडीएफसी या आईसीआईसीआई भी उस एसेट को बेच नहीं सकते। तो ऐसे केस में इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि इफ 66% ऑफ द लेंडर्स बाय वैल्यू, अगर एसबीआई और एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के टोटल लोन जो दिया गया है 10,000 करोड़ का, उसमें से अगर 6600 करोड़ रुपीस और 66% लोन दो किसी क्रेडिटर्स ने या 4 क्रेडिटर्स ने दिया है, अगर वो मिल जाते हैं, if they join their hands, then they can resolve, then they can sell the property and resolve this non-performing asset problem the way they wish to, provided जो बैंक अग्री नहीं कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक या कोई और बैंक, तो उसे उसका 20-25% एक्स्ट्रा देके छुटकारा पा लिया जाएगा, राइट। 15% एक्स्ट्रा बेसिकली देना पड़ेगा पीएनबी को। 3400 करोड़ रुपीस अगर पीएनबी ने लोन लेंड किया है तो फिर पीएनबी को 15% देना पड़ेगा, और या फिर 125% टोटल 10,000 करोड़ का लोन था तो 12,500 करोड़ रुपए देके निजात पा लिया जाएगा। तो मतलब पीएनबी की दखल अंदाजी इसमें खत्म हो जाएगी। पीएनबी ने 3400 करोड़ दिए थे, 3400 करोड़ प्लस एक्स्ट्रा 25% पीएनबी को दे दिया जाएगा और लोन टेक ओवर कर लेगा एसबीआई एंड आईसीआईसीआई। और फिर उसे अगर कंपनी को रन करना है, किंगफिशर को रन कर सकते हो, कंपनी को बेचना है तो बेच सकते हो। ये बात एसबीआई और आईसीआईसीआई द रिमेनिंग लेंडर्स जो है वो डिसाइड करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था कि ये जॉइंट लेंडिंग फोरम और ये सब के चलते अग्रीमेंट नहीं होता था। अगर कोई एक लोन लेंडर जो है एसबीआई, पीएनबी और आईसीआईसीआई में से अगर वो अग्री नहीं होता था तो फिर पूरा का पूरा लोन अटका रह जाता था, राइट। तो उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाता था। इन ऑर्डर टू डू द ईज ऑफ ब्रिंग अबाउट द ईज ऑफ रेजोल्यूशन, दिस प्रोसेस हैज बीन ब्रॉट अबाउट। अब ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये आप खुद पढ़ सकते हो। आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया है एसडीआर मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म हैज नाउ बीन विड्रॉन। और एक और स्कीम थी S4A स्कीम, this has appeared in prelims 2017 also। S4A मतलब scheme for sustainable structuring of stressed assets। S4A scheme has also been scrapped, ठीक है। बैंक्स पहले इसमें एक्वायर कर सकते थे इक्विटी ऑफ द स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। जॉइंट लेंडर फोरम और ये सब चीजें खत्म कर दी गई हैं, क्योंकि जॉइंट लेंडर फोरम की जगह अब आ गया है इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट। क्लियर? सो ये है गवर्नमेंट अबैंडन्स द रेवेन्यू डेफिसिट टारगेटिंग। एनके सिंह पैनल, ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है।
एनके सिंह पैनल की रिपोर्ट के बेसिस पे, एनके सिंह पैनल रिपोर्ट में कहा था कि फिस्कल डेफिसिट और टोटल पब्लिक डेट, अब तक का जितना भी कर्जा सरकार के सर पे है वो पूरा का पूरा पैरामीटर होना चाहिए, ना कि रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है, साल दर साल जो एक्सपेंडिचर सरकार करती है। रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना जरूरी था 2020 तक, लेकिन वो नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सकेगा। और एनके सिंह पैनल ने ये कहा था, बजाय इसके कि आप रेवेन्यू डेफिसिट एक टारगेट लेते हो, आप क्या टारगेट लेना चाहिए आपको, रेवेन्यू डेफिसिट की जगह आपको पब्लिक डेट और फिस्कल डेफिसिट ही टारगेट लेना चाहिए। Fiscal deficit was already being taken as a target, but now alongside fiscal deficit, public debt management will also have to be taken. Then centralized communication scheme 2018 ये लाई गई है। All अभी presently all income tax notices are sent by concerned tax officer by post to the address of the taxpayer. Under the new centralized communication system, all tax notices requesting information or documents will be issued by centralized communication center, right? तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर रहेंगे, अगेन पोस्टल और ये सब डिलेस खत्म हो जाएंगी। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स गवर्नमेंट ने ये प्लान करा है कि फॉरेन कंपनीज के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अबॉलिश कर दिया जाएगा। अब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है ये किसी दिन डीएनए में देखेंगे, आज नहीं। एंड नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड 60,000 करोड़ रुपीस का टू फाइनेंस इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरियाज में इसे ये किया गया। इसके साथ साथ ये फंड कहां रहेगा, फंड विल बी सिचुएटेड इन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल। ये बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और ये बॉडी किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। तो BMTPC आपको याद रखना है। Am I clear? So this is there. NUHF will facilitate raising requisite funds in next 4 years. जो भी फंड्स चाहिए हाउसिंग को डेवलप करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए, ये NUHF नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड इसे फटाफट से कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। Is it clear? So this is going to be there. Then one second. Now, better regulatory advisory group. The advisory group has been formed to look into the issues to improve regulatory process for the fast tracking of investments, both from domestic and foreign companies. तो अब इससे पहले यहाँ पे I would like to take a few 1 or 2 minutes. Foreign Investment Promotion Board को abolish किया गया था, ये कह के कि ease of doing business किया जाएगा। अब यहाँ पे the change of name itself tells you advisory group का क्या इशू रहेगा, better regulatory advisory group, fast tracking करना, foreign investments या domestic investments जो कि अटक जाती हैं अप्रूवल के चलते और परमिट नहीं मिलता है, उनको फास्ट ट्रैक करना। ग्रुप एडवाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग 6 ग्रुप्स। कौन कौन से 6 ग्रुप्स हैं, सेक्टर्स जो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस लानी चाहिए, क्या चीजें हैं, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉर्पोरेट लॉज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लॉज, रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट, रेगुलेटर की रेगुलेशन का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उसको असेस करना, उसका मूल्यांकन करना, राइट, रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट एंड देन MSME। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि अमेज़न है प्राइवेट परचेज और सेल के लिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट जो भी खरीदारी करते हैं वो यहाँ से प्राइसेस चेक कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से परचेजिंग करना जरूरी होगा। सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो जॉइंड द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, और सभी स्टेट के, जिस स्टेट ने ज्वाइन किया है, स्टेट्स के सभी डिपार्टमेंट्स को वही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से परचेज करना जरूरी होगा। इससे करप्शन एलिमिनेट होगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी टेंडर प्रोसेस में। और जीएसटी ई वे बिल क्या है, ये हमने पॉलिटी के लेक्चर में डिस्कस किया था। पॉलिटी का जो पीडीएफ है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस का, वो भी इसी फेसबुक ग्रुप आईएएस तैयारी में जतिन वर्मा पे और टेलीग्राम चैनल आईएएस तैयारी में जतिन वर्मा पे शेयर कर दिया गया है। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी जो फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड आई है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो इसी के साथ ही ये आज का लाइव सेशन खत्म करते हैं। इट्स बीन 45 मिनट्स ऑलरेडी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको स्टडी करना है, राइट।
So this was all in today's live session, and I hope it was beneficial for you all. And this video will also be uploaded on YouTube as well. There's a YouTube channel IAS तैयारी with जतिन वर्मा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और आज का डेली न्यूज एनालिसिस अनअकैडमी पे अपलोड कर दिया गया है। अनअकैडमी पे सिंपली आपको जतिन वर्मा नाम सर्च करना है। और गाइस जाते जाते बताना चाहूंगा कि पॉलिटी एंड इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, राइट, तो इस केस में बेसिकली पॉलिटी का प्लस कोर्स, जिन लोगों को पॉलिटी थ्रेडबेयर वे में समझना है, आप लोग पॉलिटी का जो प्लस कोर्स है उसमें 55 क्लासेस हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स हम उसमें कवर करेंगे, तो आप वो ज्वाइन करने के लिए कंसीडर कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक्स भी, इसके लिए भी एक अलग से कोर्स है, डिटेल्स फॉर व्हिच हैज बीन शेयर्ड ऑन दिस फेसबुक ग्रुप। उसमें हम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनाइटेड नेशंस के और अम्ब्रेला बॉडीज क्या हैं, बिम्स्टेक और बिम्स्टेक का रोल क्या है, साथ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब चीजें हम उसमें डील करेंगे, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीजें रहेंगी। और इस पूरे जो जितने भी महीने तक ये कोर्स चल रहा है और बैकग्राउंड जो पीछे के मंथ्स हैं, वो सारे इंटरनेशनल रिलेशंस को हम उसमें स्टडी करेंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सब रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में। एंड देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कोर्स के बारे में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कोर्स में वैसे तो हम फंडामेंटल राइट्स वी कीप ऑन रीडिंग, बट एक जो एनालिटिकल अप्रोच है, थ्रेडबेयर एनालिसिस अलोंग साइड द करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स हैं जैसे कि सेक्शन 377 की जजमेंट है और वो सब इश्यूज उसमें कवर किए जाएंगे, राइट। तो आप कंसीडर कर सकते हो, उनका लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड करा गया है, ये ग्रुप पे ऑलरेडी लिंक प्रोवाइडेड है, राइट, तो यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग दैट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन, बाय बाय, थैंक यू।